السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ فلی سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم نے عمرہ قضا پڑھ لیا تھا جو صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد مسلمان عمرہ کرنے گئے تھے. 3 دن کا اسٹے کیا تھا، پھر واپس وہاں سے نکل گئے تھے. پھر چند اور سرایا ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد عمرے کے بعد ہم مارکہ موتا پر آئے تھے، جس کا ہم نے 1-2 پیراگراف ریڈ کیا تھا. وہاں سے میں اسٹارٹ کر لیتی ہوں. مارکہ موتا میم پیش اور واو ساکن اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے. زیر بحث مارکہ یہی پیش آیا تھا. یہ سب سے بڑا خونریز مارکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی مارکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا. اس کا زمانِ وقوع جمادی الاول سن 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر سن 629 عیسوی ہے. مارکے کا سبب. اس مارکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرابیل بن عمر وعسانی نے، جو بلقا پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی. یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری اور آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا. لشکر کے عمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دے. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کرے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لشکر کا سپہ سالار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بنیں گے، اور اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے. پھر سفید پرچم باندھا اور پھر اس کے بعد حضرت زید کے حوالے کر دیا وہ پرچم نا. اور پھر بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ اسی جگہ پر جا کر اسلام کی دعوت دے جہاں پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دے. اگر وہ دعوت قبول کر لے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں قبول کرتے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور پھر لڑائی کا آغاز کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو. اور دیکھو، بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا. کیا بیوٹیفل انسٹرکشنز ہیں ماشاءاللہ. اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریا. گریا کسے کہتے ہیں؟ سنا ورڈ لگ رہا ہے. گریا کسی کو پتا؟ اچھا، آگے ریڈ کرنا ہے تو مجھے سمجھ آئے. جب اسلامی لشکر گریا اور زاری ہوتا ہے نا، رونا دھونا، ایسا کچھ نہیں. گریا وہ نہیں ہوتا،
دیدی ہاں تو صحیح پڑھو کہہ رہی ہوں، تو وہی رونے کو ہی کہتے ہیں، بیزاری کہنا رونا. اچھا اوکے صحیح ہے. اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا کریہ. ٹھیک ہے. جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا. اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق کے خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. جب روانہ ہونے لگ گیا تھا نا اسلامی لشکر، تو لوگوں نے پھر جو ہے جتنے بھی سپہ سالار مقرر ہوئے تھے ان سب کو الوداع کہا، سب کو سلام کیا. تو بتا رہے اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ان سے ریزن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی دنیا کی محبت یا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق یہ ریزن نہیں ہے میرا رونے کا، بلکہ یہ آیت میں نے سنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے، تو یہ اس میں جہنم کا ذکر ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آیت کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حتما مقدیہ. اچھا حتمم مقضیہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے. کیا لکھا ہے؟ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد آئی ہونے تھنک والا ہے. سسٹر فہین ایسے تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ زید بن حارث اگر حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ وہ سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں پھر عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جس کو چاہے مسلمانوں میں سے چن لینا. اور انہوں نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آف کورس بات پہ یقین بھی تھا، مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے تینوں نا. تو ایون ایک یہودی تھا اس کا نام نعمان کر کے آتا ہے، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا تھا کہ اے ابو القاسم اگر واقعی یعنی کہ آپ نبی ہو تو یہ صحابہ واقعی جنگ میں شہید ہو جائیں گے، کوئی واپس نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے. تو پھر وہ یہودی حضرت زید کے پاس گیا تو انہیں جا کے بولا کہ تیاری کر لو، تم نے واپس نہیں آنا. حضرت زید نے پھر بولا تھا کہ مجھے تمہارا تو پتہ نہیں لیکن اس بات کا پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے. تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بولا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے. اور یہ آگے یہ بات کی گئی کہ انہوں نے بولا کہ میں موت سے تو نہیں ڈرتا، یعنی کہ میرے اندر دنیا کی محبت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آگے کیا ہونا ہے جہنم بھی ہے، ہمیں کسی کو اپنا نہیں پتا کہ وہ خود کہ میں جنتی ہوں. تو اس حوالے سے آئی تھنک یہ بات آئی ہے. اچھا ہاں ورنہ ایسے یہاں پہ یہ بات ہے نا کہ یہ انہوں نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم پہ وارد ہونا ہے. یعنی جب انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کے سامنے جنت و جہنم دونوں پیش کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. جس کو جنت میں جانا ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ ٹھکانہ ہونے والا تھا لیکن اب تم اس جنت میں ہو. اسی طرح جہنمی کو دکھایا جائے گا جنت، یعنی تاکہ ان کے اندر بے چینی رہے کہ کاش کہ میں وہاں ہوتا. پچھتاوا رہے جو جہنمی ہوگا اس کو جنت دکھائی جائے گی، دونوں چیز کا دیدار کروایا جائے گا. تو اسی لیے لکھا ہے تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے. یعنی ایک تم لوگ یہ بھی ہے شہید نا تو سوری جی آپ بولیں. جی بولیے. مطلب میں تم میں سے ہر شخص جہنم پہ وارد ہونا، یعنی جہنم کے سامنے جانے میں ڈر لگتا ہے کیونکہ جہنم کا ہے نا قیامت میں لمبی گردن اٹھا کے وہ دیکھے گی اور جس کی طرف دیکھے گی اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی، جیسے میگنیٹ نہیں کھینچتا ہے اس طرح سے. تو ہر شخص کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یا اللہ جب قیامت میں اٹھایا جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ جہنت ہمیں اپنی طرف کھینچ لے. تو وہ خوف سے کہ اب ہم مریں گے یا کچھ ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ جہنم ہمیں کھینچ لے. ہماری نیت صحیح ہے اور ہم اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے قبول کرے جنت کے لیے. سمجھ آئی بات؟ جی ایک یہ بھی ہے نا کہ جہنم کے اوپر ہی پولیس رات رکھا جائے گا اور اس کے اوپر سے ہر کوئی گزر کے جائے گا. جو جہنمی ہوگا وہ وہاں سے گر جائے گا اور
जन्नती बिल्कुल जो वो जी पार कर उसी जाएंगे। उसी टाइम जी वो जी होगी नीचे से जहन्नम जो होगी ना, वो जी जिसकी जी तरफ देखेगी उसको खींच लेगी उस पुलसरात पे से अपनी तरफ, जो जहन्नमी होगा, और जो जन्नती होगा उसे क्रॉस करके आगे चला जाए। और कोई कुछ कह रहा था यहाँ पे? हाँ नहीं नहीं, बस मैं ये कहती, मैंने कहा खास तौर पे सूरह मरियम की आयत है ना, और इस पे ये जो जिस आयशा ने कहा ना पुलसरात के हवाले से इसकी तफसीर तकी उस्मानी साहब ने भी यही लिखी हुई है, ये मैंने पढ़ा था ना, मैं तो ये वही, लिखा हुआ है कि हाँ हाँ पुलसरात से मुराद जो है मतलब यानी यहाँ पे जो स्पेशली जो मुराद है पुलसरात का रास्ता है, और जिससे हर अच्छा शख्स अच्छा गुजरता होगा। ज, स्पेशली उन्होंने ये जन्नत आगे पुलसरात। नीचे की तरफ पुलसरात का जो रास्ता है ना तलवार की तरह शार्प, उस पे से हर शख्स को गुजरना होगा और नीचे उसके जहन्नम होगी। जहन्नम पे वारिद होने का ये मतलब है कि नीचे आपके जहन्नम होगी, आप उसके ऊपर वारिद होके क्रॉस करेंगे, जन्नत के लिए जाएंगे। अगर जहन्नम ने आपको खींच लिया तो आप नीचे गए, अदरवाइज आपने क्रॉस किया अल्लाह के फजल से तो आगे आपको जन्नत मिलेगी। ये सही लिखा है। हुआ है कि नेक लोग उस पुलसरात से ऐसे गुजर जाएंगे कि उन्हें दोजख की जरा सी भी तकलीफ ना होगी, और काफिर और बदअमल लोगों जी को दोजख में गिरा दिया जाएगा, मगर जी जिनके दिलों में ईमान होगा उन्हें अपने अमाल की सजा भुगतने के बाद दोजख से निकाल लिया जाएगा। जिनके दिलों में राई के बराबर भी ईमान नहीं होगा वो दोजख जी में जी पड़े रहेंगे। जी ऐसी जी छोटी सी होती 2-3 लाइनों ये की मैंने हाँ कहा। तकी उस्मानी साहब का आप रीड करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सूरह मरियम की अच्छा, आयत है, नहीं, आज मेरे पास सही खुली है। हुई थी तो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। जी, हाँ हाँ, बड़े बड़े आप रीड करें। यानी और बस ये क्योंकि ऐसे कंप्लीट हो होता गया ना, नहीं था ना। वैसे अगर थोड़ा सा ही हाँ लिखा ये, हुआ है, छोटा सा ही जी लिखा जी, हुआ है। बताइए एक बताइए। नेक लोगों को दोजख से गुजरने की हिकमत ये भी बताई गई है कि जहन्नम का हौलनाक मंजर नजारा देखने के बाद जन्नत की कदर कीमत यकीनन ज्यादा होगी। सही है सही। अच्छा, इसमें एक सेकंड रुकिएगा, ये ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सूरे मरियम की आयत नंबर 71 है ना, ठीक है? तो हाँ आपने अभी बिल्कुल तकी बिल्कुल, उस्मानी साहब की रीड करी है ना? जी बिल्कुल। सही है। हाँ, मैं इसको ना मौदूदी साहब की बिल्कुल ऐसी छोटा सा एक पैराग्राफ है वो रीड कर देती हूँ। वारिद हाँ कर होने के दीजिए। माना, वारिद होने के माना बाज रिवायात में दाखिल होने के बयान किए गए हैं, मगर इनमें से किसी की सनद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक काबिल एतमाद जराए से नहीं पहुंची। और फिर ये बात कुरान मजीद और उन कसीरुल तादाद सही अहादीस के भी खिलाफ है जिनमें मोमिनीन सालिहीन के दोजख में जाने की कतई नफी की गई है। मजीद बरा लुगत में भी दुरूद नहीं, दुरूद के माना दुखूल के नहीं है, इसलिए इसका सही मतलब यही है कि जहन्नुम पर गुजर तो सबका होगा, मगर जैसा कि बाद वाली आयत बता रही है, परहेजगार लोग इससे बचा लिए जाएंगे और जालिम इसमें झोंक दिए जाएंगे। सही है, चलो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये आयत पर सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो वो फिर रोने लग गए थे, और क्योंकि हम लोग ने पहले भी कितने सारे लश्कर की तैयारी पढ़ी है, लेकिन ऐसे हर दफा तो नहीं होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बताएं कि जब आप शहीद हो गए तो फिर वो बनेंगे, आप शहीद हुए तो वो बनेंगे, है ना? तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बाकायदा ये स्पेसिफाई हुआ है। तो मैं से किसी किसी गजबे में इस तरह से कोई ये इस तरह का सिस्टम फरमाते थे, तो इसलिए उन लोगों को काफी ज्यादा मतलब हो रहा होगा कि मे बी जो है उनको शहादत नसीब होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इस आयत के बाद से पढ़ रही हूँ। मैं नहीं जानता कि जहन्नुम पर वारिद होने के बाद कैसे पलट सकूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कह रहे हैं, मुसलमानों ने कहा, अल्लाह सलामती के साथ आप लोगों का साथी हो, आपकी तरफ से दिफा करे और आपको हमारी तरफ नेकी और गनीमत के साथ वापस लाए। ठीक है, ये लोगों ने उनसे फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा, अब ये ना, ये हरकत एराब वगैरह कुछ नहीं है तो मैं तर्जुमा ही पढ़ देती हूँ। लेकिन मैं रहमान से मगफिरत का और इस्तग़फ़ा शिकन मगज पाश तलवार की काट का या किसी नेजा बाज के हाथों आंतों और जिगर के पार उतर जाने वाले नेजे की जर्ब का सवाल करता हूँ, ताकि जब लोग मेरी कब्र पर गुजरे तो कहे, हाय वो गाजी जिसे अल्लाह ने हिदायत दी और जो हिदायत याफ्ता रहा। सही। एक्चुअली सिस्टर फरहीन, ये अब्दुल्ला बिन रवाहा शायर थे ना, ये शायरी में इन्होंने ये बात की है। तो अंसार में से थे, तो ये पहली अंसार की जो बैत थी उसमें भी, जो 12 नकीब हमने पढ़ा था शुरू में, उसमें भी ये शामिल थे कि शुरू के अंसार के मुसलमानों में थे। तो ये जब जा रहे थे उस टाइम रास्ते में शायरी कर रहे थे, तो उसमें यही ऐसे बोल रहे थे, या अल्लाह मुझे शहादत दे के मैं वापस ना आऊं। तो इनके साथ जैद बिन अरकम थे, इनके साथ सवारी में थे, जो इनकी कफालत में थे, तो वो इनकी ये शायरी सुन के रोने लग पड़े।
تو یہ उनको फिर कहते हैं कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था ना, ऐसे उन्हें छोटे थे ना वो, तो उनको ऐसे बोला, लेकिन उन्हें बोला कि मुझे वो मिलेगा जो मेरी तलब है, और तुम वापसी पे, यानी कि वो पीछे बैठे हुए थे, तो बोला कि तुम वापसी पे अकेले जाओगे ऊंट पे ना, तो पूरा ऊंट तुम्हारा, ऐसे करके बात उन्हें मजाक में की। तो जब ये मदीना से भी निकले तो रोने लगे, लोगों ने ये ऊपर जो बात आई है, लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं ना, ये जब मदीना से निकले थे उस टाइम की बात है। तो उस टाइम फिर इन्होंने बोला था कि मुझे दुनिया की मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन इस आयत पे, ये कुरान की ये आयत मैंने पढ़ी है, तो जिसकी वजह से कि जहन्नम के ऊपर से गुजरेंगे, तो मुझे नहीं पता कि मैं गुजर पाऊंगा कि नहीं। इस तरह जब मदीना से निकलने लगे थे उस टाइम में। वैसे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत फरमाबरदार, जैसे मोस्टली सहाबियों का आता है, सहाबा का, तो इनकी एक रवायत भी आती है कि एक दफा ये मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला बैठ जाओ। ये अभी मस्जिद के दरवाजे पर थे, इतनी फरमाबरदारी थी, वहां ही बैठ गए। तो फिर बैठे रहे हैं। किसी ने पूछा आप क्यों यहाँ बैठे हैं? कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि बैठ जाओ। कहते वो तो फलां सहाबी को बोला था, वो बिल्कुल उनके पास थे, खड़े थे, तो उनको बोला था, तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए? इतनी फरमाबरदारी थी। Wow, subhanallah, amazing. Jazakallah for this information, Saisha. मजा आ गया। चलिए आगे हम, ठीक है कि मैंने ये शेर का तर्जुमा पढ़ दिया, साइशा ने एक्सप्लेन कर दिया, आगे चलते हैं। इसके बाद लश्कर रवाना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मशायत करते हुए तस्निया नहीं सनीतल विदा, तो इसकी मशायत करते हुए, नहीं, जैसे वो आता ना नात में सनियतुल विदा, ये वो है, ये वादी, एक वादी विदा की पहाड़ी का नाम है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है। सनियतुल विदा तक तशरीफ ले गए और वहीं से उसे अलविदा कहा। एक मिनट रुकिएगा। लश्कर रवाना मतलब कि ये सरिया था, ये गजवा नहीं था, है ना? वो तो क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया कह रहे हैं ना, इसकी शायद करते वहां तक गए और तशरीफ ले गए, वहीं से अलविदा कहा, ठीक है। इस्लामी लश्कर की पेशरफ्त और खौफनाक नागहानी हालत से साबका। इस्लामी लश्कर शुमाल की तरफ बढ़ता हुआ मकान पहुंचा। ये मुकाम शुमाली हिजाज से मुतसिल शामी उर्दुनी इलाके में वाक़े है। यहाँ लश्कर ने पड़ाव डाला और यही जासूसों ने इत्तला पहुंचाई कि हिरकल कैसर रोम बल्का के इलाके में माप के मुकाम पर 1,00,000 रोमियों का लश्कर लेकर खैमाजन है और उसके झंडे तले लख्मो जजाम बलकैन बहरा और बलीब कबाइल अरब के मजीद 1,00,000 अफराद भी जमा हो गए हैं। यानी तकरीबन 1,00,000 लोग मुसलमानों के मुकाबले पर थे, ये बात हो रही है। फहीम, इधर तो ये बात आई है, लेकिन अगर आप याद करें, ये हरकुल इनके दरबार में अबू सुफियान गए थे, और इन्होंने बहुत अच्छी वो बातें पूछी थी, बहुत वो डीप बातें पूछी थी, और फिर एक्सप्लेन भी किया था कि मैंने क्यों ये बातें की, और उन बातों से वो जान से गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। तो यहाँ तो ये आता है कि ये हरकुल अपने 1,00,000 रोमियों का लश्कर लेके पहुंचे लड़ने के लिए, लेकिन सीरा की बाकी किताबों में आता है कि हरकुल ने कभी कोई जंग नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। अच्छा अच्छा, इस बुक में ये लिखा है, ठीक है सही, इधर ऐसे है जी। ओके ओके सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा, फिर आ रहा है मुआन में मजलिस शूरा। मुसलमानों के हिसाब में सिरे से ये बात थी ही नहीं कि उन्हें किसी ऐसे लश्कर जरार से साबका पेश आएगा जिससे वो इस दूर दराज सरजमीन में एकदम अचानक दो-चार हो गए थे। अब उनके सामने सवाल ये था कि आया 3,000 का जरा जितना लश्कर 2,00,000 के ठाटे मारते हुए समुंदर से टकरा जाए या क्या करे? मुसलमान हैरान थे और इसी हैरानी में महान के अंदर 2 रातें गौर और मशवरा करते हुए गुजार दी। कुछ लोगों का ख्याल था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख कर दुश्मन की तादाद की इत्तला दें, इसके बाद या तो आपकी तरफ से मजीद कुमक मिलेगी या और कोई हुक्म मिलेगा और उसकी तामील की जाएगी, ठीक है। तो मुसलमान बहुत ज्यादा, इतने बड़े जो लश्कर के ये लोग थे, यानी 1,00,000 ऊपर लिखा हुआ है, हाँ टोटल 2,00,000 थे, हाँ
2 लाख था, मुसलमान सिर्फ 3,000 थे, तो अब वो डिस्कशन करने लग गए, कहाँ पे बता रहे हैं, हाँ डिस्कशन करने लग गए कि अब क्या किया जाए ना, क्योंकि बिल्कुल ही कोई मुकाबला ही नहीं था नंबर ऑफ पीपल देखा जाए तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सोचा कि हम लिख कर इत्तला दें दुश्मनों के बारे में कि उनकी इतनी तादाद है, फिर उसके बाद या तो वो मजीद मतलब नफरी भेजेंगे वहां से, या फिर कोई और हुक्म वहां से भेजेंगे और हम उसकी तामील करेंगे, ठीक है। तो ये अभी ये डिस्कशन ही चल रहा है वहां पे मुआन में। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस राय की मुखालफत की और ये कहकर लोगों को गरमा दिया कि लोगों, खुदा की कसम, जिस चीज से आप कतरा रहे हैं ये तो वही शहादत है जिसकी तलब में आप निकले हैं। याद रहे, दुश्मन से हमारी लड़ाई तादाद, कुव्वत और कसरत के बल पर नहीं है, बल्कि हम महज उस दीन के बल पर लड़ते हैं जिससे अल्लाह ने हमें मुशर्रफ किया है। वाह। इसलिए चलिए आगे बढ़िए, हमें 2 भलाइयों में से एक भलाई हासिल होकर रहेगी, या तो हम गालिब आएंगे या शहादत से सरफराज होंगे। बिलाखिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेश की हुई बात तय पा गई। ना जबरदस्त पैराग्राफ है, मैं एक दफा और इसको रीड करूंगी। लेकिन इसी हजरत तरह हमास हाँ, ने इसी तरह तो अटैक किया है इतने बड़े इसराइल के। देखिए इसको मैं रीड करती हूँ दोबारा। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस राय की मुखालफत की और ये कहकर लोगों को गरमा दिया कि लोगों, खुदा की कसम, जिस चीज से आप कतरा रहे हैं ये तो वही शहादत है जिसकी तलब में आप निकले हैं। याद रहे, दुश्मन से हमारी लड़ाई तादाद, कुव्वत और कसरत के बल पर नहीं है, बल्कि हम महज उस दीन के बल पर लड़ते हैं जिससे अल्लाह ने हमें मुशर्रफ किया है। इसलिए चलिए आगे बढ़िए, हमें 2 भलाइयों में से एक भलाई हासिल होकर रहेगी, या तो हम गालिब आएंगे या शहादत से सरफराज होंगे। बिलाखिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु की पेश की हुई बात तय पा गई। दुश्मन की तरफ इस्लामी लश्कर की पेशकदमी। गर्ज इस्लामी लश्कर ने मुआवन में 2 रातें गुजारने के बाद दुश्मन की जानिब पेशकदमी की और बलका की एक बस्ती में जिसका नाम मशारिफ था, हिरकल की फौजों से उसका सामना हुआ। इसके बाद दुश्मन मजीद करीब आ गया और मुसलमान मूता की जानिब सिमट कर खेमजन हो गए। फिर लश्कर की जंगी तरतीब कायम की गई। मैमना पर कतबा बिन कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़री मुकर्रर किए गए और मैसरा पर इबादा बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जंग का आगाज और सिपह सालारों की यके बाद दीगरे शहादत। इसके बाद मुता ही में फरीकैन के दरमियान टकराव हुआ और निहायत तल्ख लड़ाई शुरू हुई। 3,000 की नफरी 2 लाख टिड्डी दल के तूफानी हमलों का मुकाबला कर रही थी। अजीबो गरीब मार्का था। दुनिया फटी फटी आंखों से देख रही थी, लेकिन जब ईमान की बादे बहारी चलती है तो इसी तरह के अजायब बात ज़हूर में आते हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आलम लिया और ऐसी बेजिगरी से लड़े कि इस्लामी शहबाजों के अलावा कहीं और उसकी नजीर नहीं मिलती। वो लड़ते रहे यहाँ तक कि दुश्मन के नेज़ों में गथ गए और जामे शहादत नोश फरमाकर जमीन पर आ रहे हैं। ठीक है, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर शहीद हुए। इसके बाद हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी थी। उन्होंने लपक कर झंडा उठाया और बेनजीर जंग शुरू कर दी। जब लड़ाई की शिद्दत शबाब को पहुंची तो अपने सुर्ख व स्याह घोड़े की पुश्त से कूद पड़े, कूचे काट दी और वार पर वार करते और रोकते रहे, यहाँ तक कि दुश्मन की जर्ब से दाहिना हाथ कट गया। इसके बाद उन्होंने झंडा बाएं हाथ में ले लिया और उसे मुसलसल बुलंद रखा, यहाँ तक कि बायां हाथ भी काट दिया गया। फिर दोनों बाकीमानदा बाजुओं से झंडा आगोश में ले लिया और उस वक्त तक बुलंद रखा जब तक कि खुलात शहादत से सरफराज ना हो गए। कहा जाता है कि एक रूमी ने उनको ऐसी तलवार मारी कि उनके 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह ने उन्हें उनके दोनों बाजुओं के एवज जन्नत में 2 बाजू अता किए जिनके जरिए वो जहां जाते हैं उड़ते हैं। अच्छा, इसलिए उनका लक़ब जाफर तैयार और जाफर जुल जनाखैन पड़ गया। तैयार माना उड़ने वाले और जुल जनाखैन माना 2 बाजुओं वाला।
اچھا یہ بات ہے واقعی، یہ مطلب ऑथेंटिक ہے हाँ یہ بات؟ हाँ ये बात है। उनका नाम जाफर तैयार, और वो उनके 2 बाजू होंगे और वो जन्नत में उड़ते होंगे अभी भी। इमाम बुखारी ने नाफे के वास्ते से इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये बयान रिवायत किया है कि मैंने जंग मुता के रोज हजरत जाफर के पास जबकि वो शहीद हो चुके थे खड़े होकर उनके जिस्म पर नेज़े और तलवार के 50 जख्म शुमार किए। उफ, इनमें से कोई भी जख्म पीछे नहीं लगा था, कोई भी जख्म पीछे नहीं लगा। एक मिनट रुकिए, देखो कितना मतलब फ्रंट पे आगे की तरफ से फ्रंट लड़े, पे पीछे जी भागते हुए बैक पे नहीं लगे, सारे जख्म अच्छा उनके अच्छा 50 आगे की तरफ लगे। ओके 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 सही। एक दूसरी रिवायत में इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये बयान इस तरह मरवी है कि मैं भी इस गज़वे में मुसलमानों के साथ था। हमने जाफर बिन अबी तालिब को तलाश किया तो उन्हें मक्तूलीन में पाया और उनके जिस्म में नेज़े और तीर के 90 से ज्यादा जख्म पाए। नाफे से उमरी रिवायत में इतना और इजाफा है कि हमने ये जख्म उनके जिस्म के अगले हिस्से में पाए। नीचे क्या लिखा है, बज़ाहिर दोनों हदीस में तादाद का उनकी इख्तिलाफ है। बहादुरी का है, ठीक है, अच्छा सही शुजाअत है, और बहादुरी। ओके। इस तरह की शुजाअत और बसालत से भरपूर जंग के बाद हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद कर दिए गए। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने परचम उठाया और अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़े और अपने आप को मुकाबले के लिए आमादा करने लगे, लेकिन उन्हें किसी कदर हिचकिचाहट हुई, हत्ता कि थोड़ा सा गुरेज भी किया, लेकिन उसके बाद कहने लगे, तर्जुमा, ए नफ्स, कसम है कि तू जरूर मद्दे मुकाबिल उतर, ख्वाह नागवारी के साथ ख्वाह खुशी खुशी। अगर लोगों ने जंग बर्पा कर रखी है और नेज़े तान रखे हैं तो मैं तुझे क्यों जन्नत से गुरेजा देख रहा हूँ। इसके बाद वो मुकाबले में उतर आए। इतने में उनका चचेरा भाई एक गोश्त लगी हुई हड्डी ले आया और बोला, इसके जरिए अपनी पीठ मजबूत कर लो क्योंकि इन दिनों तुम्हें सख्त हालात से दो चार होना पड़ा है। उन्होंने हड्डी लेकर एक बार नोची, फिर फेंक कर तलवार थाम ली और आगे बढ़कर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ठीक है, यहाँ से आगे फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।